Thank you, Anuj and Chandrachur. I think it was a very enlightening session today. And I have been following this story for the last 10 years, and I think Anuj has already become the face of, everything about Bose. So now my question is that, do you have anything to share about his life before he came to Faizabad and to those pockets? Where was he and what he did? Well, Faizabad was his last stop. He came to Faizabad in 1983. Before that, he entered India around the early 1950s. So, whatever we have been able to trace back is that he first lived in Mainpuri. Then, from Mainpuri till late 50s, in mid 1950s, he moved to Lucknow. Late 1950s, he moved to Nimsar. And around 1964 or 5, he moved to Ayodhya. He stayed there for a few years. From there, he moved to Basti. In Basti, he lived the longest period, about 9 or 10 years, and again went back to Ayodhya, lived again about 6 or 7 years, and then moved back to Faizabad, his last stop. What he was doing is will take 3 hours, but alternatively you can read the book. But he was doing a lot of things. Only few people were meeting him, but a lot was happening. But he was constantly, as I said, whenever there was a risk of his identity being exposed, he changed places. Hi. Thank you, Anuj. Thank you, Chandrachur, for your insights. Just want to ask you one question because even I have been listening to Anuj on YouTube. He has given multiple talks on the same issue. This is the man who gave us the slogan, "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," right? And though we all have bought into the idea that in 1945 his plane crashed in Taipei and we lost this great leader. And from your talk, it comes out that he was in India in some one way or the other, and he didn't want to come out because the government of India had some sort of a secret pact or anything. But if this man who was saying out loud that "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," wasn't he ready to start some sort of a rebellion against the very people who have now colluded to get him arrested on the other side because they were ready to sell him out? Well, that's a very relevant question, equally tricky one. And I'm afraid, it cannot be explained. I cannot answer your question in 5 minutes or 10 minutes. There are multiple layers to it, multiple strands to it. If you remember, I showed 2-3 options why he didn't come out. One of them was the political situation. Let's hypothesize, even if he did come out in 1950, what was the political setup like? Who did he have on his side? Congress? Definitely no. Leftists? Jayaprakash Narayan had more or less taken political sannyas. Ram Manohar Lohia was never too much of a suicide, and he apologized in his later writings about that. Who did he have on his side? Forward Bloc? Dependent on Communist Party of India. He himself was staunchly anti-communist. The communists had betrayed him. With whom was he going to build the rebellion? No, that doesn't add up actually. No, it adds up. No, the short answer of it is that he was constantly trying to come out. Several attempts were made. In fact, there was even his linkages with the army, something which we can't discuss, of course, right now. So he was constantly trying. In fact, I think as late as 1980, he was talking about. He was saying, "I'll come out." So he was constantly making attempts to come out. In fact, there have been rumors of a coup attempt in his country. So we don't want to get into those things right now. So he was constantly he was making attempts to come out, and these were there right from 63. Every third letter he's saying, "I'm making attempt. I'll come out. I've got contacts." But it never materialized. So eventually, if a man can be very brave, he can have all the things in his favor. But if there's a psychological trauma, there's something wrong in one way or the other. And it doesn't have to be a realist. It doesn't take much for a powerful government to bump off somebody in anonymity. It doesn't take, you don't have to be really brave and go and stand out on the road and say, "If you can kill me, I am going to stand up against you." You'll just be taken aside and bump off. Henderson Brooks report. Yes. It hurts nobody. Everybody is dead. Why it's not released, even by this government? Or this Gumnami Baba story, when this government is staunchly, at least on face of it, pro-Subhash Chandra Bose or anti-Nehru stance, why can't they support you in this, investigation of truth? Okay, Gumnami Baba may be no more, but at least let us know the truth. So have you approached government
And has it tried to evade this issue? सर एवेट करा उसका एक और प्रॉब्लम जो हमको नजर आ रहा है वो ये है कि सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया, जो ब्यूरोक्रेसी और जो मशीनरी है. Now, if you ask me, recently there was a discussion about the Jallianwala Bagh thing. We should seek an apology from the British. Indian government would never do, because we were giving these people pension, those who fired at the people in Jallianwala Bagh. The soldiers are all Indians. We were even giving pension to the descendants of those who took part in 1857 on the British side. So the entire system, the people who should have been shot dead on 47, in 47, India became free. They continued. The grandfather was a British stooge. The son was an Indian Army general. The son is the Indian Foreign Secretary. The father was a British lackey. So the system, but the generation have passed on, but things have not changed. For example, in this case, the problem with Subhash Chandra Bose is the moment you talk about the issue with British, it's a very sensational thing. No matter how you put it, but so sensational. I remember Arnab Goswami telling me once that, this is such an interesting thing. Our channel is times now seen in 77, 78 countries. We've never seen so much of interest in public when they hear about such. Everybody loves to know about a mystery. The moment you get into this issue, and even for the sake of the argument, you prove that this man did not die, there'll be such a interest in this man's life and death. Then eventually it would come out, and we have given a lot of documents to support India's becoming free has to do with Subhash Chandra Bose, not with Mahatma Gandhi. The Ahimsa did nothing. You can't even evict a tenant because of the Ahimsa. So that's completely unpractical thing. But the problem with the Ahimsa, the good point is this construct. Now, if you give it to the bureaucrats, there's a construct that Subhash Chandra Bose attained India freedom with the help of the Axis powers. On the other hand, Mahatma Gandhi, with cooperation of the British and the Americans, he obtained India's freedom. So that is acceptable to them, because don't forget, whether it's the Home Secretary or the Foreign Secretary, be it the Chief of the Army or the Secretary of RNW, all of them have their children settled in America and Europe. Everybody aspires to settle their children in America and Europe. So they all have Western construct, drilled to their heads. Even till date, people in the army, everywhere, Mr. Modi, Prime Minister Modi, the idea was to rename the entire Andaman Nicobar. Netaji had renamed it Shaheed and Swab, the entire island, not one part of it, because there was resentment in the PMO. No, don't do it. Why? Because Japanese had come, had committed war crimes. What war crimes? It's a British construct. There were some traitors who were supporting the British. They were tortured. So you are still continuing with the same old British line. You want to have only the Western construct. And Gandhiji, since he gave an honorable exit to the British, he is respected in England, and from England he goes the whole world, goes around all the world in the West. And because all our people, the elite and the ruling class, have to have the children settled in America and Europe, they will never go against us. Because of our need, we have to stick. Because you get Subhash Chandra Bose's ghost out, it will come out very clearly. India became free because of him. There are multiple documents. Baba Saheb Ambedkar's bite is available. So India becoming free has to do with them. So that is the main problem right now. The moment the Subhash Chandra Bose's name comes up, the Gandhi brand, where billions of rupees have been pumped right from 1947, the whole thing will collapse. And the very good example of it is the government, which is today run by people. I know what people do in Shakha, and look at the way they are behaving once in power. Even Mr. Yogi, before he became the Chief Minister of UP, he was running a website in which there was a documentary on the Subhash Bose death controversy. I was there in it. After he has become the Chief Minister, he has not bothered about it. 1949 में USSR में जो इंडिया के राजदूत थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इंडिया में आके कलकत्ता के एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था. उसमें कहा था कि ताशकंद रेडियो स्टेशन में सुभाष चंद्र बोस को जाते हुए मैंने देखा और वो जिंदा है, इसमें दशा में. उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुलाया तो उन्होंने अपनी स्पीच वापस ली कि ये गलत है और उनको यहाँ उपराष्ट्रपति बनाया. तो इसमें कितनी सच्चाई? मैं बताता हूँ. देखिए, यहाँ पे 3 तरह के रूमर्स हैं, और वो रूमर ये है कि पंडित जी की बहन वाज द फर्स्ट एम्बेसडर टू रशिया. शी वाज प्लेनिपोटेंशियरी, एम्बेसडर का रैंक उस टाइम नहीं हुआ था, तो शी वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द मिशन इन रशिया. तो ये कहा जाता है कि जो आप ये कहानी बता रहे हैं उनकी बहन के बारे में, कि विजय लक्ष्मी जी ने बोला, उन्होंने कुछ बोला है कि मेरे पास में कोई ऐसी न्यूज़, दोनों का नाम है. बट पहला जो बता रहे हैं वो बेसिकली लक्ष्मी पंडित के बारे में है, कि उन्होंने कहीं आके बोलने की कोशिश की कि मेरे पास में एक ऐसी न्यूज़ है, और वो अगर मैं आपको बता दूं तो लोग बहुत खुश होंगे, और इतनी खुशी होगी जो आपको 15 अगस्त सन 47 को भी नहीं हुई थी. तो पंडित ने उसको मना कर दिया. एक और स्टोरी है जो बहुत पब्लिकली रिपोर्ट हुई है कि राधा कृष्णन जो एम्बेसडर थे, उनके बाद में उन्होंने भी उनको जाके मिला था.
गुमनामी बाबा ने रशिया के बारे में डिटेल में बातचीत करी है। तो उन्होंने बोला है कि पहला आदमी जिसको मेरे बारे में मालूम चला था वो था केपीएस मेनन, जो हमारा फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी था। ही वाज देयर, ही सेड केपीएस मेनन फर्स्ट केम टू नो। केपीएस मेनन शायद वो नेताजी इकट्ठे लंदन में इकट्ठे पढ़ते थे, उनके आईसीएस के बैच में दूसरे बैच में थे उसके, मतलब सुभाष बोस और 1 ईयर सीनियर टू He was in Oxford. तो उसका रेफरेंस दिया कि मेरा कुछ उससे अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे था। इनफैक्ट ही इज डायरेक्टली गिवन सम अदर हिंट आल्सो। सेकंड थिंग ही मेंशंस कि उसके बाद में विजय लक्ष्मी आई है और उसके बाद में राधा कृष्णन ने पता लगाने, क्योंकि उनको खबर लगी कि साइबीरिया में कुछ काम चल रहा है, मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है, तो उसने उस तरह की डिटेल दी है। तो ताशकंद वाले का कोई कंफर्म है उन्होंने नहीं बोला है, हमारे को पास इंफॉर्मेशन। उन्होंने जो भी बोला बाद में मुकर गए, तो बस उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रहा। कि आपने इतना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उसके किताब भी रही है, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। जैसा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन पर्सन लाइक अबाव, हम तो क्या ही कर सकते हैं, बस इतना आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करें कि ये गवर्नमेंट इस चीज को, मतलब पहला कि एंश्योर कि गुमनामी बाबा की जितनी चीजें आई हैं वो कंजर्व हो सके, एंड सेकंड टू नो द होलसम ट्रूथ ऑफ नेताजी से। देखिए, पहला काम को करना है कि आपको भगवान भला करे अमेरिकन का कि ये फेसबुक और ट्विटर आपके पास में है और प्रधानमंत्री खुद उसको देखते हैं, तो सोशल मीडिया में आप लोग सब एक्टिव रहिए। कोई भी ऐसा इशू आता है तो उसको रिट्वीट करें, फेसबुक डायरेक्ट सवाल करिए, गवर्नमेंट को उनको मैसेज भेजिए कि जैसे वहाँ यूपी में मजाक बना के रखा हुआ है कि कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने बोला सारा सामान सिक्योर कर दिया, सारे सामान को म्यूजियम में लगाओ, म्यूजियम में लगा दिया, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकलिटी की उसको पब्लिक को खोला नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं, उन्हें मालूम है कि जिस दिन म्यूजियम खोलेंगे वो है राम कथा संग्रहालय। अयोध्या के अंदर एक ही डिसेंट बिल्डिंग है, नीचे भगवान राम का सामान रखा है, फर्स्ट फ्लोर में गुमनामी बाबा का सामान रखा है। जिस दिन वो खोल दिया उन्होंने वहाँ पे, पूरा का पूरा यूपी बिहार सारा जाकर के उसको देखेगा, बवाल मच जाएगा, ये रोक नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर कि इस केस के अंदर बहुत बवाल मचने वाला है। जब ये वहाँ पर गए थे, मुझे पता है वो बात, यू कैन टेल देम राइट नाउ कि वहाँ पे क्राइम ब्रांच, वो आपके जो इंटेलिजेंस वाले पीछा करते हैं आपका, कि आप क्या करने आप यहाँ पर आए, भाई आपको कोई और काम था। वहाँ पे मेरे पीछे क्राइम ब्रांच के वो फोन आ गया, पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही है, फॉलोइंग आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, व्हाई वुड द क्राइम ब्रांच और द स्पेशल आपको गया इतना पुराना केस हुआ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फर्क है कि कांग्रेस के टाइम में वो आपको हड़काते थे, आपको धमकी, ये ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकते थे, पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब लोग सिर्फ वो नोट करते हैं, अब वो कुछ करते लेकिन नोट करते हैं। एक चीज, ये सरकारें ना सब चिट्ठियों पे काम करती हैं, तो अगर लिखना शुरू कर दें चिट्ठियां, फिजिकल लेटर्स, दैट इफेक्ट्स। आप जैसे जब 1000 लोग ऐसे लिखेंगे, ट्वीट करेंगे, फेसबुक में बात करेंगे, उनका क्वेश्चन गुड इवनिंग आप मुझे बाद में बोल दीजिएगा, आप ये क्वेश्चन क्योंकि Good evening, sir. Good evening to both of you. I completely agree on the social media point. In fact, I'm connected with both of you on Twitter, so kind of and I keep tweeting about it. I just wanted to ask you very quickly that you just said when you started this presentation that this is the last word on the Netaji mystery. So why have I agree with you, and so why have you named this book Conundrum? If you could please. Conundrum, as I told you that we came across certain inherent conflicts, contradictions. जैसे 3 personality traits हैं गुमनामी बाबा के। अगर बाहर उन्होंने इतना कुछ किया है और फिर भी चुपके रहे, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का क्या इफेक्ट था? जब तक इंटेलिजेंस फाइल्स, सरकारी फाइल्स पूरी तरह से डिक्लासिफाई होकर बाहर नहीं आते हैं, पूरा हमें समझ में नहीं आएगा। अभी तक हमें सिर्फ आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हम कर पाए हैं, अभी तक हम सिर्फ ऊपर का पूरा स्टोरी का एक ढांचा हमें मिल गया है। We know what happened, we know who he was. The why and the how, those will be clear only when the government declassifies all intelligence files, and I'm telling you, both of us will tell you clearly in no uncertain terms that there are intelligence files and the government cannot deny that. Both the state government, Uttar Pradesh, and the central government. तो किताब का नाम जो ये कनंड्रम हिंदी में कहते हैं पहेली को, रिडल है। तो कनंड्रम इज नॉट अबाउट एंटिटी, ही सुभाष चंद्र बोस, बट इज लाइफ आफ्टर डेथ इज अ कनंड्रम। तो पहला सवाल पूछा था कि वो कैसे आए थे, क्यों आए थे। अब एग्जैक्टली आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मानसरोवर के रास्ते से आए थे, वहाँ से आए, लेकिन एक एक चीज़ को हम आज नहीं, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है, गवर्नमेंट फाइल नहीं दे रही है, इसके भगवान जी के फॉलोअर्स हमें कागज़ नहीं दे रहे हैं। तो जो हमको हाथ लगा हमने एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी डिटेल में, लेकिन अभी भी उसमें बहुत से कन्फ्यूजन है। अब एक वन हैंड में हम कह रहे हैं कि यस वो पर्सन को साइकोलॉजिकल ट्रूमा है, वी आर फाइंडिंग साइंस कि उसने
उसने ऐसी बातें बोली हैं जो ऑब्वियसली विच आर नॉट ट्रू, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज मेड स्टेटमेंट्स व्हिच आर कंप्लीटली ट्रू। नाउ फॉर एग्जांपल 1971 की जो वॉर हुई है, वॉर होने से बहुत पहले उसने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। अब ये कैसे उसको मालूम है? फिर उसने एक एग्जांपल दिया कि आपका वो जो जेसौर को इलाका है कैंटोनमेंट, मतलब लड़ाई होने के जेसौर का नाम किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि जेसौर कैंटोनमेंट का गिरना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद से लड़ाई पाकिस्तान हार गया। इस आदमी ने बैठ करके डिस्कशन दी है जेसौर के बारे में उस घटना घटने के 8-10 दिन पहले या मतलब महीने भर पहले कि ऐसा कैंटोनमेंट है, वहाँ बलूच रेजिमेंट है, यहाँ फलां ढमकाना है। जिस दिन वो गया पूरा खेल खत्म। और ये दावा किया उसने लड़ाई होने से बहुत पहले कि 7 दिन का वहाँ पे काम है। अब वो बैठ के ये दावा कर रहा है कि 62 की लड़ाई में मैंने आपको बचाया। वो ये दावा कर रहा है कि 65 की लड़ाई में उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो लाहौर तक गया था पुलिस फौजियों के साथ में। 71 में वो ये दावा कर रहा है कि मैनक शॉ से मिलने चुपचाप आया करते थे। तो हमको वो साइन मिल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर हमने केस बना के देना, कल को हमने कोर्ट में जाना है, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो आप ही निकालेंगे साहब। ये तो जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भगवान जी बैठ के बात करते थे भूतों के बारे में कि भूत होता है, क्योंकि वो सन्यासी थे, तांत्रिक साधना करते थे, तो आप बोलेंगे ये तो पागल आदमी है, भूत तो होता नहीं है। लेकिन वही बात हम आपको निकाल के दें कि अमेरिका में भी भूत की बात होती है, कि अच्छा अमेरिका में भी होती है, वो तो फिल्म बनेगी हॉलीवुड की। तो वही बात कोई बड़ा जो बात जग्गी वासुदेवन जो अपने सदगुरु बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वो बात उसने बोली है। शायद उसने अच्छा बोला है क्योंकि उसका नाम किसी को नहीं पता। तो हमने स्टीव जॉब्स को वगैरह को भी इंक्लूड किया कि स्टीव जॉब का जो गुरु था वो अपनी किताब में क्या लिखा है। अब उसी को उठा के विराट कोहली ट्वीट करेगा तो आप बड़े खुश होते हो कि साहब कितनी अच्छी किताब है, स्टीव है ना विराट कोहली इसको लेकर रहा है। कभी पढ़ा आपने उसमें लिखा क्या उसके अंदर? यही बातें लिखी। अपने घर में बैठ करके सारे आदमी तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, सारे आदमी ज्योतिषी के पास जाते हैं, सारे आदमी भूत को मानते हैं, चाहे हिंदुस्तान चाहे अमेरिका हो। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट के सामने, हम तो बड़े साइंटिफिक आदमी हैं, तो हमको वो एक स्टैंडर्ड लेना पड़ा कि इवन दो वी कैन नॉट पुश दिस असाइड, ही हैज टॉक्ड ऑफ फैंटास्टिक थिंग्स कि मेरे पास में पावर्स है, मैं सूक्ष्म शरीर में काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसी पावर के बेसिस पे मैं यहाँ से बैठे बैठे सारे काम कर रहा हूँ। अब उसको मैं साइंटिफिकली से प्रूव करूंगा तो ऑब्वियसली हमको वो साइकोलॉजिकल ट्रूमा वगैरह पे ही, बिकॉज वो लॉजिकल है, साइंटिफिक है। सो द कनेंड्रम इज अबाउट हिज लाइफ, ही लिव्ड इन इंडिया। हम जितना हमको समझ में हमें समझा दिया, लेकिन बाकी के लिए हमको इंटेलिजेंस के, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड की एक्सेस चाहिए, उसके बिना काम नहीं चले। प्लान टेस्ट का जो मामला है, हाँ, इसको लेके जो झूठ का आकाश रचा गया था उसमें तो आपने छेद कर दिया। हाँ, पर यक्ष प्रश्न यह है कि ये जितने आयोग बनाए गए, शाहनवाज खां वगैरह के जो रोल रहे, उसकी हकीकत भी सामने आ गई और आपने बहुत तर्कपूर्ण तथ्य भी रखे, प्रामाणिक तथ्य भी रखे, सारी बातें सामने आई। पर यह सारी चीज़ें हमारे इतिहास का हिस्सा कब बनेगी? मतलब अभी तक तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाया जाता है, ये जो हाईलाइट किया गया है, वहाँ तक तो यह सारा कुछ पहुँचा नहीं है। हमारे HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि सुभाष बोस में कोई देने का इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मेरी पर्सनल नॉलेज है कि उसको सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ये कि उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया पब्लिकली कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है हमने कोई हिस्ट्री में चेंज नहीं किया। तो जो लोग हिस्ट्री का नाम चेंज करने के लिए पावर में आए थे, आप ये कंट्रास्ट देखिए ना कि वो लोग जो सारी जिंदगी शाखा में गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, पावर में आके गांधी भक्त बन गए वो लोग। तो जो मेन प्रॉब्लम जो आपको मैंने थोड़ा उनको बताया था मैंने, कि जब तक आपने बच्चा अमेरिका में, यूरोप में सेटल करने का बेसिक आइडिया दिमाग में है कि जनरल साहब लड़का कहाँ अमेरिका में सेटल है, अच्छा फॉरेन सेक्रेटरी कहाँ, लड़की कहाँ है जी, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है। आपसे एक तो छोटा सा सवाल पूछूं। जब तक दिमाग से ये भूत नहीं निकलेगा ना वेस्टर्न कंट्रीज का कि मुझे बच्चे वहां सेटल करने, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, इंडिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन है आपके हिसाब से? हाँ सॉरी, और कोई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं आप लोग नहीं जानते, सारे गलत इंफॉर्मेशन रखते हैं। भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन का नाम है महात्मा गांधी। क्यों बताता हूँ, एनसीईआरटी के मैथ्स टेक्स्ट बुक के पहले पढ़ने में गांधी जी के कोट से शुरू होता है। आप मुझे रिलेशन बताइए। हर जगह डालते। उसका कारण ये है, उसका मैंने बताया आपको। देखिए आप देखिए, सन 47 के बाद से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हर साल पे होती है। यहाँ पे आपका IITO में गांधी पीस फाउंडेशन, जहाँ बड़े धंधलेबाजी हुई थी कि पैसा लेके वो फॉरेन, गांधी जी का आधा खानदान अमेरिका में सेटल हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये लोग अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हर साल उस ब्रांड में जाती है। जितना काम हम लोगों ने उसके बाद किया, हम खुल के ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ये 2% काम मैंने गांधी पे कर दिया होता और पद्मश्री मिल चुका होता, हमें ठेंगा मिलता है।
तो अटक अटक के बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे पे कितने खतरे हैं उसके ऊपर, इसको लेकर के। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, वो सिस्टम, उसका पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? वो सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को ऑनरेबल एग्जिट दिया है। उनके स्टेटमेंट्स हैं कि अंग्रेज हम पे एहसान कर रहे हैं हमको छोड़ करके। ठीक है जी, वो फिल्म आई थी ना गांधी, आपके देखिए कि आपने महात्मा गांधी वेटनबरो की, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। आप उस फिल्म को देखें, आपको 2 संदेश मिलेंगे। पहला संदेश कि गांधी जी बहुत महान थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, गांधी जी को मैं ये नहीं कह रहा कि महान नहीं थे या उन्होंने रोल नहीं प्ले किया, बिल्कुल रोल प्ले किया बहुत, ही वाज अ फ्रंट लाइन फ्रीडम फाइटर। लेकिन सेकंड उसमें आपको मिलेगा कि अंग्रेजी बहुत अच्छे थे, कि प्यार से बोला प्यार से चले गए। तो अंग्रेजों की इमेज अच्छी होती है गांधी जी को दिखाने में कि इतने अहिंसा से बोला चले गए। तो पॉइंट ये कि ये बातें उनको वहाँ जब ये सेटलमेंट हो गई, जब लंदन में मूर्ति लग गई है, न्यूयॉर्क में मूर्ति लग गई है, जब मैंने बच्चा ही वहाँ सेटल करना अपना, तो मैं क्यों उनके खिलाफ बोलूंगा? उसके सुभाष चंद्र बोस कभी भी यूरोप अमेरिका में उसकी मूर्ति नहीं लगने वाली। एटनबरो की मूवी में नेताजी सुभाष का फोटो भी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, एक सीन नहीं है उसके बारे में। सीन नहीं है। बट अनुजदा चंद्रचूड़ कोई भी नया गवर्नमेंट के लिए जो नया कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने का इतना बड़ा उसको चाहिए होता है, उसका रिक्वायरमेंट होता है। दिस प्रूव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी The government had every opportunity to call us to ask for our inputs. And second, of all the facts that you could have verified or you could put your confidence on till now, आपने इस बुक से और पहले वाली बुक से जो अनुजदा की हैं, हम सबको कितना परसेंटेज बताया? 10, 20, 40, 50? हम कहाँ पे हैं? आप जितना जानते हो। आपको बस इतना बता दें कि 5 साल में ये किताब 10 चिट्ठियां लिखी है। 5 साल में हम कम से कम 10 चिट्ठियां लिखे हैं। कितना बताया है आपने? नहीं, इस किताब में सब कुछ है। इस किताब में आपको 60%, 70% तक सब मिल जाएगा।